गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट हमारा केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चल रहा था, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हम ले चुके हैं, जिसमें आपको ओवरव्यू बताएगा, ओवरव्यू ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, उसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ओवरव्यू दिया केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस का। इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पे हम डिस्कस करेंगे और थर्ड लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताएंगे। इस तरह से पूरा चैप्टर हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशंस टू टाइप्स के। नंबर 1, unbalanced chemical equation, and number 2, balanced chemical equation. Now the question arises, what we mean by unbalanced chemical equations and balanced chemical equations? As clear from its name, जो unbalanced chemical equations होती है स्टूडेंट्स, उसमें atoms of element are equal on both sides of the reaction. Like for example, we will take a reaction HCl plus NaOH. It will give NaCl प्लस H2O। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ली है। इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ए बेस, एंड दे कंबाइन टुगेदर एंड विल गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, मींस salt and water। In this reaction, atoms of element sodium is one on the reactant side and one on the product side. Like this, atoms of the chlorine element, one on the reactant side and one on the product side, means किसी भी एलिमेंट्स के लिए रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों ही साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल है। इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब प्यारे बच्चों, हमें ये क्लियर हुआ कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस ये है, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन हमको दी गई है, उसमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में किसी भी एलिमेंट के एटम्स इक्वल हैं, मींस सारे एलिमेंट चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो, अगर उनके एटम्स इक्वल है, इट मींस इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है, सिंगल एलिमेंट भी ऐसा है, उसके एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है, इट मींस इट इज ए टाइप ऑफ unbalanced chemical equation. Now for example, अब हम unbalanced chemical equation का एक एग्जांपल लेंगे। ये एग्जांपल हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का है। एक एग्जांपल हम लेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2NaHCO3 when heated it will give Na2CO3 plus H2O plus CO2. It will evolve, means carbon dioxide gas will evolve। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? The information of the equation is sodium bicarbonate when heated, it will give sodium carbonate and carbon dioxide gas will evolve and water will generate. It means in case of sodium bicarbonate, second name is sodium hydrogen carbonate, or you may say baking soda. It is known as baking soda. When we heat baking soda, it will give Na2CO3, sodium carbonate, washing soda. Another name is washing soda, and carbon dioxide gas will evolve. It will generate water. This chemical equation is not balanced, so it is an example of unbalanced chemical equation. Now the question arises, why this equation is unbalanced? Because the atoms of each element is not equal on the reactant side as well as on the product side. You may take
sodium. On the reactant side, there are 2 atoms also. On the product side, there are also 2. But hydrogen, 2 atoms are there and 2 atoms are there. Now the question arises, we balance the equation sodium bicarbonate which was unbalanced. Now the actual equation is this, which is given on the blackboard. Sodium bicarbonate means NaHCO3. Atoms of sodium atom, 1 on the reactant side, whereas 2 on the product side. It is an example of unbalanced chemical equation and it is an example of balanced chemical equation. Dear students, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को दी गई है इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? What are the steps to balance an unbalanced chemical equation? We will discuss now. Let us take again that example. जो एग्जांपल हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का लिया था वही एग्जांपल हम लेते हैं और फिर उसको बैलेंस करते हैं. उससे हमें पता चलेगा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें. NaHCO3 means sodium bicarbonate. When heated, it will give sodium carbonate means Na2CO3 and water and carbon dioxide gas will evolve. Now we have to balance it because sodium atom is not balanced. On the reactant side, sodium element has only 1 atom and on the product side it has 2 atoms. How to balance? Now, first we make it table. Serial number is there. Symbol of the element. Atoms on reactant side. Atoms on reactant side. And last, atoms on product side. Dear students, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को दी गई है इसको बैलेंस करना है तो कौन से स्टेप्स का हम यूज करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं. सबसे पहले हम टैबलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टेबल. इस टेबल की तरह हम टैबलेट करेंगे. इन दिस टेबल serial number, symbol of the element, atoms on reactant side of the same element and atoms on product side on the same element. Now the elements which are present in the reactants are first sodium, second hydrogen, third carbon and fourth is oxygen. Count the atoms. On the reactant side, sodium 1, hydrogen 1, carbon 1, oxygen 3. On the product side now, dear students, this is our reactant side and this is our product side. फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो एक्चुअल सब्सटेंस हम लेते हैं और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है दे आर प्रोडक्ट्स. नाउ atoms on the product side, sodium 2, hydrogen 2, carbon 1 and 1 2, oxygen 3 1 4 and 2 6. How to balance it now? Let us see. Sodium 1 on the reactant side and 2 on the product side.
means on the reactant side we will multiply by 2. 1 into 2 is equals to 2. Now 2 atoms are on the reactant side and 2 on the product side. Means हमने मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट को बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करने पर सोडियम के पास भी 2 एटम्स हो गए ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 2 ऑलरेडी थे. नाउ फॉर हाइड्रोजन, नाउ वी मल्टीप्लाई NaHCO3. इट मींस हाइड्रोजन इज आल्सो मल्टीप्लाई. 1 into 2 is equals to 2. जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया सोडियम 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए. मींस 1 into 2 is equals to 2 and 3 into 2 6. ऑक्सीजन ये भी 6 हो गए. प्यारे बच्चों, अब हमने देखा रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स ऑफ एलिमेंट थे नाउ दे आर इक्वल. सोडियम 2 and 2, हाइड्रोजन 2 and 2 on both sides, carbon 2 and 2 on both sides, oxygen 6 and 6 both sides. It means now the reaction is balanced. जो रिएक्शन हमने पहले ली थी अनबैलेंस थी, लेकिन अब हमने उसको बैलेंस किया. डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री. हमें बताया केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिएक्शंस तो है ना. तो हमें रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशंस रिएक्शंस की बैलेंस होती हैं, कौन सी अनबैलेंस होती हैं, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपका आपकी क्लास 10th में तो यूज होगा ही, साथ ही साथ आपकी हायर क्लासेस में 11th 12th में भी यूज होगा. इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पर तो हमने एक एग्जांपल आपको दिया है रिएक्शन का, इतना इन योर होम, और एग्जांपल्स लेंगे और उनको बैलेंस करें. अनबैलेंस्ड इक्वेशंस के एग्जांपल्स आपको लेने हैं, उनको बैलेंस करना है बाय फॉलोइंग मेथड, जो मेथड हमने आपको बताया उसी को. नाउ स्टूडेंट्स, आवर थर्ड लेक्चर बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. हम एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देते हैं जल्दी से शॉर्ट में. इस लेक्चर का रिकैप ये है, इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को पढ़ा. इस पूरे चैप्टर को हमें 3 लेक्चर्स में कवर करना था. लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3. लेक्चर 1 में हमने आपको बताया ओवरव्यू ऑफ द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस. मींस आपको एक आइडिया दिया गया केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं. सेकंड लेक्चर में केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स को डिस्कस किया गया और थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स. तो केमिकल इक्वेशंस के टाइप को क्या डिस्कस किया, हमने बताया आपको there are 2 types of chemical equations. These are balanced chemical equations and unbalanced chemical equations. Balanced chemical equations प्यारे बच्चों वो होती हैं जिनमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सभी एलिमेंट्स के एटम्स इक्वल होते हैं. और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें किसी भी एक एटम का या एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स अनइक्वल होते हैं ऑन बोथ साइड्स, मींस ऑन रिएक्टेंट साइड एंड ऑन प्रोडक्ट साइड. इस लेक्चर में आपको यह भी बताया गया कि किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे. तो हमने आपको बताया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस इस मेथड से करते हैं. फॉलोइंग टेबल डिजाइन करते हैं और उसको इवैल्यूएट करके हम उसको बैलेंस करते हैं. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड एंड वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, मींस थर्ड लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट.